ایک دوست کی کرامت یہ تھی، دوست کی کرامت، کہ وہ جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتا تھا لیکن آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی تھی، آگ اثر نہیں کرتی تھی اس کے ہاتھ پہ۔ تو لوگ اس سے بہت پوچھتے تھے، یار تو اتنا صاحب کرامت آدمی کہ آگ تیرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا تھا چھوڑو یار، یہ ایک راز ہے، اسے راز ہی رہنے دو۔ سب نے پوچھا، نہ بتایا۔ ایک دن اس کا قریبی کٹر پکا دوست، بڑا پیارا چہیتا دوست اس سے کہتا، یار تو سب کو نہیں بتاتا، مجھے تو بتانا۔ آخر وہ دوست کیسا جو اپنے دوست سے راز کو چھپا لے؟ اس نے کہا، یار اگر تو میری بات جاننا ہی چاہتا ہے تو پھر دل تھام کے سن، یہ بہت بڑا راز تھا زندگی کا جو میں نے سب سے چھپایا لیکن تجھے بتاتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا دیکھ، میں جب جوان تھا نا، میں جوانی کی دہلیز پہ میں نے قدم رکھا، دیکھو جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ میں جب جوان تھا تو جوانی میں میرے پاس دولت تھی، حسن تھا، اور میں ایک مالدار باپ کا بیٹا تھا۔ یہ بات تو لڑکوں کے ساتھ میں کل کروں گا انشاءاللہ جو مجھے کہنا ہے، لیکن چونکہ آج لڑکے نہیں ہیں تو میں نے آپ ہی سے گفتگو کرنی۔ درود شریف پڑھ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ لوگ پوچھتے تھے کہ تو آگ میں ہاتھ ڈالتے، آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ کسی کو نہیں بتایا، دوستوں کو بتایا۔ میں جوان تھا، مالدار تھا، مالدار باپ کا بیٹا تھا۔ جوانی میں میری نظر میرے گھر کے سامنے ٹیرس پر کھڑی ہوئی ایک لڑکی پہ پڑ گئی۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی، جمیل تھی، آنکھیں چار ہو گئی۔ میں نے سوچا پوری زندگی گنوا دوں گا، پوری دولت داؤ پہ لگا دوں گا، اس لڑکی کو میں حاصل کروں۔ جنون تھا، جوانی میں جنون ہوتا ہے، جوانی بہت جنونی ہو، جنون کہتے ہیں پاگل پن کو۔ جوانی کا جیم اور جنون کا جیم لازم و ملزوم۔ بس ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ جب دو جیم ایک ساتھ ہیں تو اس جنون کو عشق مجازی یعنی اپنے جیسے لوگوں کے جنون میں تبدیل کرنے کی بجائے جنون عشق مصطفیٰ میں تبدیل کر دو، انشاءاللہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی جنت بن جائے گی۔ جنون ضرور ہو جوانی میں، لیکن عشق مصطفیٰ کا جنون، محبت رسول کا جنون۔ ارے دھوکہ دینے والوں سے کیوں دل لگاتے ہو نادانو؟ اگر دل ہی لگانا ہے تو جانے وفا سے دل لگاؤ، دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی۔ اور عشق کو تڑپاتا ہے، عشق مصطفیٰ سکون عطا کرتا ہے۔ اور عشق کو ذلیل کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ عزت دیتا ہے۔ ہر عشق جو ہے وہ زمین میں دھسا دیتا ہے، عشق مصطفیٰ کعبے کی بلندیوں پہ کھڑا کرتا ہے۔ اور عشق کو گمنام کر دیتا ہے، عشق مصطفیٰ نیک نام کر دیتا ہے۔ اور عشق کو بدنام کر دیتا ہے، عشق مصطفیٰ ایسی عزت عطا کرتا ہے انسان قبر میں چلا جائے تو بھی اس کا نام باقی رہتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور عشق لوگوں کے درمیان سر جھکا دیتے ہیں، عشق مصطفیٰ قبر میں نکیرین سے بھی عزت وصول کر لیتا ہے۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جوان کہتا ہے میں جوان تھا، خوبصورت تھا، حسین تھا، مالدار تھا، لڑکی سامنے نظر آئی، اس سے دل دے بیٹھا، آنکھیں چار ہو گئی، حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی، میں جتنے بھی ڈورے ڈالتا تھا سارے ڈورے ناکام ہوتے، میں جتنی بھی لالچ دیتا تھا، اس کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ وہ لڑکی میرے دامے فریب میں نہیں آتی تھی، میرے مکر میں نہیں آتی۔ میں نے بہت لالچ دی، مال کی، شادی کی، اس کی کسی پہ اس کی رال نہ ٹپکی، کسی پہ وہ نہیں للچائی۔ پتہ ہے کیوں؟ جسے آخرت کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے وہ دنیا پہ کبھی رال نہیں ٹپکاتا، کیونکہ دنیا تو ختم ہونا، دنیا بہت تھوڑی سی، بہت بے وفا ہے دنیا، بہت بے وفا ہے۔ حضرت بہادر شاہ ظفر نے بڑی حسرت سے کہا تھا، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں گزرے 2 انتظار میں۔ یہ دنیا ہے صرف 2 دن کی، اور اتنے بڑے بادشاہ کو خود کی زمین پر قبر نصیب نہ ہوئی، یہ دنیا ہے۔ دیکھیں تو سے بہادر شاہ ظفر کی قبر انڈمان کے جزیرے میں ہے، اتنے بڑے اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، اس کے جنازے میں 50 لوگ شریک نہ ہو سکے۔ یہ دنیا ہے، دنیا سے تاج محل میں جو 200 ناشتوں کی ڈش لگایا کرتا تھا، اس کے جنازے میں 50 لوگ نہیں تھے۔ اور بہادر شاہ ظفر کی زندگی کا جو آخری دن تھا، پھٹی ہوئی ٹوپی تھی، کھادی کا کرتا تھا اور میلے کپڑے تھے، اور جب انگریزوں سے وہ آخری مقدمہ لڑ رہے تھے تو زبان کچھ بول رہی تھی، ہاتھ اشارے کچھ کر رہے تھے، یعنی ہاتھ بھی اشاروں سے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن بہادر شاہ اتنا بھوکا تھا کہ بھوک کی وجہ سے اس کی عقل کام نہیں کر۔ یہ دنیا ہے،
किस दुनिया पे ललचा रहे हो, किस रोटी कपड़े मकान पे ललचा रहे हो, थोड़ा ख्याल कर लो। दुनिया किसी के साथ, हुजूर से लिपट जाओ, हुजूर के कदमों से लिपट जाओ। सब कुछ अपना ही अपना है, हुजूर सब कुछ है अल्लाह के बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। उनसे लिपट जाओ, उनके मजहब को छोड़ कर न जाओ, उनका घर छोड़ कर न जाओ। ये इस्लाम उनका घर है, इसी से लिपट करके रहो। ठोकरे खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो काफिला तो ए रजा। अव्वल गया आखिर गया, और मेरे इमाम कहते फिर के गली गली तबाह। ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। अल्लाह अकबर। वो कहता है कि माल था, दौलत थी, सब था, मैंने लड़की को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की मेरे दामे फरेब में बिल्कुल ना आई। बिल आखिर उसकी शादी हो गई, उस पाक दामन नेक लड़की की शादी हो गई तो हमारे इलाके में कहत आ गया तो हर गरीब मालदारों के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए खड़ा हो गया। मेरे बाप ने मुझसे कहा बेटा अल्लाह ने हमें माल दिया, दौलत दिया है, तुम गरीबों में माल तकसीम कर दो। कोरोना में आपने देखा ना गरीबों का क्या हुआ था, गरीब क्या मालदारों का क्या हुआ था, आपने देखा। उस जमाने में कहत था, हर गरीब मालदार के दरवाजे पे खड़ा था। वो नौजवान अपने दोस्तों को वाकया सुनाते हुए कहता है कि मैंने देखा कि कतार में जो लोग लगे हुए थे, उस कतार के अंदर, उस क्यू के अंदर वो लड़की भी लगी हुई थी जिससे मैं प्यार करता। बहुत अरसे बाद वो लड़की दिखी तो मैंने सोचा आज इसकी गुर्बत का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा, आज इसकी मजबूरी का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा। और मैंने अपने नौकरों से कहा तुम इन सबको तकसीम करो। वो लड़की को लेके मैं कमरे में आया और लड़की से कहा लड़की तू क्यों आई है। उसने कहा कि मैं बेवा हो गई हूं, 3 मेरे बच्चे हैं और तीनों बच्चे छोटे छोटे हैं। मेरे बच्चे भूख से बिलक और तड़प रहे हैं, तो मैं बच्चों की वजह से तेरे दरवाजे पर आई हूं कि तू लोगों को भीख दे रहा है तो मुझे भी दे दे। वो नौजवान कहता है मुझ पर शैतान गालिब आया और मैंने लड़की से कहा तू जो कहेगी मैं दूंगा, दौलत में तुझे तौल दूंगा, अनाज क्या तुझे दौलत में तौल दूंगा। बस एक काम कर, अपना जिस्म मुझे सौंप दे ताकि मैं उससे लुत्फ अंदोज हो जाऊं। यानी उसने ज़िना की पेशकश की, बदकारी की पेशकश की। पता है वो लड़की गरीब थी मगर बेगैरत नहीं थी। नेक माँ बाप ने उसकी अच्छी तरबियत की थी। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के किरदार के साये में लड़की ने फौरन एक जुमला कहा, ए नौजवान अल्लाह से डर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी गुनाह बाकी रह जाएगा। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। अरे सारे दरवाजे तेरे घर के बंद हैं, लेकिन एक दरवाजा अल्लाह और बंदे के दरमियान जो खुलता है उस दरवाजे को तू बंद नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। उसने कहा अगर तू अपना जिस्म मुझे नहीं सौंपेगी, मेरे साथ बदकारी नहीं करेगी, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। उस लड़की ने कहा कुछ नहीं देते हो तो मैं आबरू बेचकर तो अनाज कमा नहीं सकती, रोटी कमा नहीं सकती। वो वापस क्या हुई, उसके छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे थे, उसके छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे थे। नन्हे बच्चों को माँ थी तड़पता नहीं देख सकती थी। माँ होती है, माँ की ममता होती है। एक माँ अपने लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, मैं तुम्हें क्या ममता सिखाऊं, तुमसे ज्यादा ममता कौन जाने, क्योंकि तुम माँ हो। मैं किस तरीके से तुम्हें ममता बताऊं। माँ अगर मुर्गी होती है तो भी बच्चों से प्यार करती है, चिड़िया होती है तो भी बच्चों से प्यार करती है। अरे माँ अगर वहशी कुतिया होती है तो भी अपने बच्चों से प्यार करती है। माँ अगर अशरफुल मखलूकात रसूलुल्लाह की उम्मत में हो तो वो माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती होगी। उस माँ ने अपने बच्चों को बिलकता और तड़पता देखा, माँ से रहा न गया। घर से ये सोच करके निकली बच्चों की जान बचाना है तो आबरू का सौदा कर लूं, बाद में तौबा कर लूंगी। याद रखना ये शैतान का बहुत बड़ा मक्र और फरेब है। इस तरह इंसान से गुनाह करवाता है कि चलो अभी गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर लेंगे। सुन लो, बाद में गुनाह करने की मोहलत पर तो गुनाह ना, बाद में तौबा करने की मोहलत पर गुनाह मत करो। किसने कह दिया कि गुनाह के बाद तौबा की मोहलत भी मिलेगी। अगर गुनाह करते करते मौत आ गई तो क्या बनेगा हमारा। ये दुनिया तो 2 दिन की है, जो आखिरत हमेशा रहने वाली है। वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत हमेशा रहने वाली है और बेहतर है। आखिरत बर्बाद हो जाएगी, आखिरत तबाह हो जाएगी। मेरी बहनों, उस लड़की ने ये सोच करके चलो अभी रोटी हासिल करने के लिए गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर लेंगे। लेकिन जैसे उसके पास है उसने कहा क्या अपना जिस्म दे दोगी। जबान से हाँ निकलने से पहले बदन लरस गया, क्योंकि वो जानती थी अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, उसका तसव्वुर था। कांप गई। और उसके बाद जब उस मर्द ने कहा कि तू जो कहेगी मैं देने तैयार हूं, बस इतना कि अपना जिस्म दे दे, उसने उस शख्स से कहा खबरदार, अच्छी तरह याद रख, मैं आबरू दे करके बच्चों
बच्चे को तड़प तड़प कर भूख से मरता तो देख लूंगी, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगी, और अब तेरे दरवाजे पे लौट कर भी नहीं आऊंगी। ये कहकर वो लड़की जैसे ही पलट करके गई, अल्लाह ने इसका दिल बदल दिया। याद रखना, अल्लाह का वादा है जो मुझसे डर के गुनाह छोड़ दे, मैं उसे ऐसी जगह से रिस्क देता हूं जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। मेरी बहनों, जब वो पलट के चली गई, वो लड़के का दिल बदल गया। वो जवान कहता है, मेरा दिल बदला और मेरे दिल में ख्याल आया कि ये गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है, तो मुझे मालदार होकर अल्लाह से कितना डरना चाहिए। और में भरा हुआ कुत्ता है, उसकी तरफ हट जाना, मगर बेनमाजी की तरफ मत हटना, इसलिए कि कुत्ते की जो निजासत है अगर वो तुम्हारे जिस्म पे लग गई तो उसको आप थोड़े से पानी से धुलकर पाक हो जाओगे, लेकिन बेनमाजी की नहूसत अगर तुम पर पड़ गई तो उसको दुनिया के कोई समुंदर का पानी धो नहीं सकेगा। आप मुझे बताएं कि बेनमाजी से इतनी नफरत गौस पाक कर रहे हैं और हम लोग मस्जिदों को वीरान कर चुके हैं। हमारे पास नमाज के लिए वक्त नहीं है, दोस्तों के लिए टाइम, माँ बाप के लिए टाइम, खेल कूद के लिए टाइम, जुआ खेलने के लिए टाइम, शराब के अड्डों पे जाने के लिए टाइम, फिल्में देखने के लिए टाइम। जिस रब ने जिंदगी दी, जिस रब ने दौलत दी, जिस रब ने कुव्वत दी, जिस रब ने बोलने की जबान दी, जिस रब ने देखने की आंखें दी, जिस रब ने सब कुछ दिया, धोखा देने वाले लोगों के लिए हमने इतना वक्त दिया, लेकिन उस अल्लाह के लिए जिसने हर नेमत हमें दी, उस अल्लाह के लिए टाइम नहीं। आज मुसलमान धड़ल्ले से कहता है, मौलाना टाइम नहीं मिलता नमाज के लिए। व्हाट्सएप चेक करने के लिए नमाज है, व्हाट्सएप चेक करने के लिए वक्त है, फेसबुक के लिए वक्त है, यूट्यूब के लिए वक्त है, कैरम खेलने के लिए वक्त है, ताश के पत्ते खेलने के लिए वक्त है, इधर उधर बैठकर किसी की गीबत करने के लिए वक्त है। अल्लाह की नमाज के लिए वक्त नहीं है, अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं है। सोचो उस गुलाम का हश्र क्या होगा जो अपने आका की बारगाह में हाजिर होने के लिए वक्त नहीं देता। जिस रब ने सब कुछ दिया, उस रब के लिए टाइम नहीं अपने पास। अंजाम क्या होगा, अंजाम क्या होगा? सुनो, अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे, अपने हाल पे रहम कर लो। इससे पहले कि हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाए, नमाजी बन जाओ। इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आकर हमारे जिस्म का ताल्लुक हमारी रूह से तोड़ दे, बदल जाओ, वरना पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। ये बड़े बड़े मकानात, ये बड़ी बड़ी कारें, ये बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस, ये बड़ी बड़ी जायदाद, ये खेतियां सब यहीं रहेगी। कफन में कुछ नहीं ले जाना है आमाल के सिवा। जो कफन में ले जाना है उसके लिए टाइम नहीं, जो यहां पड़ी रह जाना है उसके लिए रात दिन मेहनत। झूठ बोल बोल के माल कमा रहे हैं, नाप तोल में कमियां कर रहे हैं, लाटरियां खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सूद खा रहे हैं। जो सब छोड़कर जाना है उसके लिए रात दिन मेहनत, जो कब्र में ले जाना है उसके लिए कोई मेहनत नहीं। तो अपने सच्चे नबी ने फरमाया, मेरी माँ और बहनों की भी खास तवज्जे, ये बात सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये औरतों के लिए, हर इंसान के लिए है। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो 99 सांप, 90 पर 9, 99 सांप उसकी कब्र में डाल दिए जाते हैं अल्लाह की तरफ से। 99 सांप, ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये किसी आम इंसान की बात नहीं, ये अल्लाह के रसूल का फरमान। और नबी का की हदीस का इनकार करने वाला और मजाक उड़ाने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। अपने नबी ने फरमाया, अपने सच्चे रसूल ने फरमाया, 99 सांप अल्लाह उसकी कब्र में मुसल्लत करता है। और उन सांप की ताकत का आलम क्या है? इरशाद फरमाया, वो जो 99 सांप है उसमें से एक एक सांप की कुव्वत का हाल ये है कि अगर वो सांप किसी पहाड़ पे डंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अगर वो सांप दुनिया में फूंक मारे, फुनकार दे, तो उसकी गर्मी से सारे इंसान मर जाए। एक सांप इतनी ताकत वाला है। ऐसे ताकतवर 99 सांप बेनमाजी की कब्र में मुसल्लत किए जाते हैं। उसने अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ी थी तो जोहर तक वो सांप उसको डसते रहते हैं। अल्लाह अकबर। फिर जोहर नहीं पढ़ी थी, असर तक वो सांप उसको डसते रहते हैं।
मगरिब नहीं पड़ी थी, मगरिब तक के वो सांप उसको डसते रहते हैं। इशा नहीं पड़ी थी, अल्लाह अकबर, मगरिब नहीं पड़ी थी, इशा तक सांप डसते रहते हैं। इशा नहीं पड़ी थी, फजर तक सांप डसते रहते हैं। ये डसने का सिलसिला अल्लाह अकबर उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। अब आप मुझे बताएं, अगर छोटा सा कीड़ा हमें डंक मार दे, अगर चूंटी हमें काट ले, कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। बिच्छू डंक मारे, उस अल्लाह ना करे किसी को कभी बिच्छू ने काटा हो, जिनको काटा हो उनको पता होगा कि पूरे जिस्म में एक अंगार सी हो जाती है, एक जलन सी हो जाती है। दुनिया का बिच्छू, खेत का बिच्छू एक डंक मारे तो इंसान ऐसे तड़पता है और ऐसे बिलकता है कि अल्लाह अकबर, उसको करार नहीं आता। तो जिसको अल्लाह के मुसल्लत की वे सांप डसते होंगे और फिर वहां कोई बचाने वाला नहीं, ना माँ बचाने वाली, ना बाप बचाने वाला, ना भाई बचाने वाला। सोचो हम अपने आप पे कितना जुल्म कर रहे हैं। बताओ, एक वक्त की नमाज के लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। अगर हम 10 मिनट का टाइम एक नमाज के लिए निकालें, 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट का टाइम है, ये 50 मिनट हम निकाल दें तो कितने बड़े अजाब से बच जाएंगे। अरे अजाब से तो बच ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारा इनाम क्या होगा? हमारी कब्र को इंशाअल्लाह नमाज की बरकत से जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाएगा। बल्कि हदीस पाक में आता है, जब नमाज पढ़ने वाले को उसकी कब्र में रखा जाता है, नमाज पढ़ने वाले को उसकी कब्र में रखा जाता है, तो वो क्या देखता है कि सूरज गुरूब हो रहा है। हर बंदे को जब कब्र में रखा जाता है तो क्या देखता है कि वो सूरज गुरूब हो रहा है, यानी असर का वक्त होता है। तो वो जो नमाजी होता है वो कहता है फरिश्तों से हटो हटो, अभी मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी है, क्योंकि उसको नमाज की आदत होती है। वो कहते हैं बाद में बातें होगी, पहले मुझे असर की नमाज पढ़ लेने दो, मेरी नमाज जाती है। और फरिश्तों को अल्लाह कहेगा, आप पूछते क्या हो, देखते नहीं कि मेरा बंदा मेरा कितना वफादार है, इसलिए इसके लिए जन्नत का बिस्तर लगा दिया जाए। और उस बंदे के लिए जन्नत का बिस्तर लगा दिया जाता है। और उस बंदे के लिए जब जन्नत का बिस्तर लगता है तो वो देखता है कि एक दुल्हन उसकी कब्र में मौजूद है, एक दुल्हन उसकी कब्र में मौजूद है। भाई छोड़कर चले गए, वो बच्चे छोड़कर चले गए, दोस्त छोड़ के चले गए, अहबाब छोड़ के चले गए, सब छोड़कर चले गए। वो परेशान था, लेकिन देखता है कि एक दुल्हन उसकी कब्र में मौजूद है। कहता है आप कौन है? तो वो घूंघट उठाकर कहती है, मैं तेरी नमाज हूं। जब मेरा वक्त आता था तो तू सबको छोड़ देता था, आज तुझे सबने छोड़ दिया है, तो तेरा दिल बहलाने के लिए अल्लाह ने मुझे तेरी कब्र में भेजा है। अब क़यामत तक मैं तेरा साथ देती रहूंगी, तेरा दिल बहलाती रहूंगी। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, सफर में रहो तो भी नमाज पढ़ो, घर पे रहो तो भी नमाज पढ़ो, खुशी हो तो भी नमाज पढ़ो, गम हो तो भी नमाज पढ़ो। और याद रखना, ये मत सोचना अल्लाह मेरी कबूल करेगा कि नहीं करेगा, ये बात दिमाग से निकाल दो, ये बात दिमाग से निकाल दो। मैं अनपढ़ हूं, मैं जाहिल हूं, मैं तो देहाती हूं, मैं तो गवार हूं, वो मेरी कबूल करेगा कि नहीं करेगा? वल्लाह उसकी बारगाह में ज़बानें नहीं देखी जाती, उसकी बारगाह में तो दिल के जज्बात देखे जाते हैं। जब कोई बंदा दिल से झुक जाता है, एक ही सजदे पर अल्लाह उसको जन्नत की बशारत अता कर देता है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। आजकल जहां मर्द नमाज से दूर है, मेरी माएँ और बहनें भी कोसों दूर है। और मेरी माएँ बहनें कहती, मौलवी साहब हमें बच्चों को खिलाना पड़ता है, बच्चों की परवरिश करें। मर्द तो छड़े हैं, मर्द तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें बच्चे पालने पड़ते हैं, बच्चों को खिलाना पिलाना है, कपड़े धुलने हैं, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी बहनों, ये बताओ बच्चे सिर्फ तुम्हारे हैं या सैयदा फातिमा तो ज़हरा के भी बच्चे थे? छोटी सी उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र थी, छोटी सी उम्र में अल्लाह ने 5-6 बच्चों से नवाजा था। हर बच्चे की खिदमत करती थी, लेकिन कभी नमाज नहीं छूटती थी। बल्कि आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, आज तो घर घर जो है वो नल बने हुए हैं, नलों में पानी आता है, करीब करीब कुएं हैं, और फिर आटा भी छोटे छोटे देहातों में, बल्कि आज तो फकीरों के यहाँ जो भीख मांगते हैं उनके यहाँ भी आटा पीस करके आता है। फकीर की बीवी को भी आटा पीसना नहीं पड़ता है ना, लेकिन अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा अपने हाथों से चक्की चलाती थी, अपने हाथों, कितनी मसरूफ जिंदगी थी, अपने हाथों से चक्की। इतने बड़े मालदार बाप की बेटी
کہ ان کے بابا سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں کہ مالدار باپ کی بیٹیاں بڑے عیش پرست ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں سب ایسی نہیں ہوتی. واللہ سیدہ فاطمہ کے بابا سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ کسی کا باپ کھیت کا مالک، کسی کا باپ زمین کا مالک، کسی کا باپ گاؤں کا مالک، کسی کا باپ جاگیر کا مالک. سیدہ فاطمہ کے بابا وہ تھے جسے اللہ نے آسمان سے لے کے زمین تک کے ہر چیز کا مالک بنایا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے انہیں جنت کا مالک بنا دیا تھا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. نعرہ تکبیر، ایسے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محفل مصطفیٰ. ایسے مالدار باپ کی بیٹی، ایسے مالدار باپ کی بیٹی، ایسے دولت مند باپ کی بیٹی جس کے بارے میں میرے امام نے کہا آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. جس کو بھی بھیک ملی ان کے در سے ملی، جس کو بھی جو نعمت ملی اس کے در سے ملی. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. فرشتے جس کے دروازے پہ دامن بھرے، انبیاء جس کے دروازے پر نعمتیں پائیں، اللہ اکبر وہ میرے نبی کی چوکھٹ ہے. اللہ اندازہ تو کریں، اتنے مالدار باپ کی بیٹی ہے، ہاتھ سے چکی چلاتی. سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں فاطمہ کو چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، چھالے گٹے پڑ گئے تھے. اور فرماتے ہیں جب پانی بھر کر اپنی پیٹھ پر مشکیزہ رکھ کر لاتی تو پانی پیٹھ پر رکھ کر لانے کی وجہ سے پیٹھ پر مشکیزے کے کالے نشان پڑ گئے تھے. یہ تھی ان کی زندگی. اور حال کیا تھا؟ نماز تو نماز ہے، فرض تو فرض ہے، واجبات تو واجبات ہیں، تہجد ہو یا رات کی عبادت ہو. حالت یہ تھی کہ جب عشاء کی نماز کے بعد نفل نماز شروع کرتی، ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی، ایک ہی سجدے.